Good morning, students. Now, our next topic is the propagation of errors. Propagation of errors, or it is also known as the combination of errors. For example, when you have done the experiment, you have taken the readings. So the sum of the errors which have been introduced in the reading, when you are doing the addition, subtraction, multiplication, so the errors will also get multiplied, will also get added, and so the errors, large amount of error is introduced in the reading. So let us see what happens what happens to the errors in the sum. Sum means the addition. For example, when we are adding x is equal to a plus b, a and b are the two readings, so when these are added we get the new quantity, that is x. Okay, so delta x, or first you write delta a. Delta a is the absolute error in the measurement of a. Delta b is the absolute error in the measurement of b. Delta x is the absolute error in the measurement of x. Write the complete sentence. Okay, delta x is the absolute error in the measurement of x, that is the sum a plus b. Okay, now x plus minus delta x. प्लस माइनस मीन्स या तो एरर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है या थोड़ा सा कम हो सकता है. सो दैट इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस वी आर डूइंग द एडिशन, सो b प्लस माइनस डेल्टा b. ये हमने क्या किया, a जो रीडिंग थी उसके एब्सोल्यूट एरर के साथ में इसको या तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा या कम होगा. यहाँ भी वैसा ही है. ठीक है, या तो b जो रीडिंग आएगी उसमें या तो थोड़ा सा एरर ज़्यादा होगा या थोड़ा सा एरर कम. ये होता है प्लस और माइनस का मतलब. ठीक है, सो कैन वी राइट, देखो अब ये ब्रैकेट इसको ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस माइनस, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a. तो a प्लस b लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. So in place of a plus b, from this equation can you write x? So x plus minus delta x is equal to x plus minus delta a plus minus delta b. So x gets cancelled, so plus minus delta x is equal to plus minus delta a plus delta b. अब क्या है कि चार पॉसिबिलिटीज़ हैं. चार पॉसिबिलिटीज़ कैसे, या तो देखो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दूसरा प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, थर्ड माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और चौथा हो जाएगा माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. मीन्स जो एरर आने के चार पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या तो दोनों प्लस में, प्लस माइनस, या प्लस माइनस प्लस, या माइनस माइनस. तो ये चार पॉसिबिलिटीज़ हैं. सो 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एरर्स आर देयर. इन दैट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज हाउ मच, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज. सो मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो डेल्टा एक्स की वो होगी प्लस माइनस वो प्लस वाली वैल्यूज. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा एरर आ जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. ओके, नेक्स्ट इज द एरर्स ड्यू टू डिफरेंस. एरर्स ड्यू टू डिफरेंस. ठीक है, तो एरर्स ड्यू टू डिफरेंस में क्या हो जाएगा, एरर्स ड्यू टू डिफरेंस में हो जाएगा सेम वही चीज़. फर्स्ट इज द डिफरेंस का मतलब होता है माइनस
when we are doing the subtraction of the two quantities a minus b, so delta absolute error in the measurement of a, delta b is the absolute error in the measurement of b, and delta x is the absolute error in the measurement of x, that is a minus b. So here x plus minus delta x is equal to, वापस वैसे लिखेंगे, so a plus minus delta a, सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर, देखो दोनों में जो डिफरेंट मतलब जो वैल्यू और उसका जो एरर, माइनस b प्लस और माइनस डेल्टा b. सो कैन बी राइट a माइनस b प्लस और माइनस डेल्टा a, और यहाँ पे जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस 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 प्लस डेल्टा b. ओके, सो a माइनस b को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b, तो x x gets cancelled, plus minus delta a minus plus delta b. So x x gets cancelled, so delta x is equal to how much? Plus minus delta a minus plus delta b. Again, four possible values will be there. Four possible values will be there. Plus delta a plus delta b, फिर plus delta a minus delta b minus delta a plus delta b and minus delta a minus delta b. So the four possible values of errors will be there. So in that the maximum possible error, जो मैक्सिमम पॉसिबल जो एरर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा आपका प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. देखो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब हम डिफरेंस कर रहे हैं तो भी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो एरर आता है वो आता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इन द डिफरेंस. इस चीज़ को एक न्यूमेरिकल से समझते हैं हम लोग, ठीक है. देखो एक क्वेश्चन है कि टेम्परेचर रीडिंग से, टेम्परेचर रीडिंग है, फर्स्ट है कि टेम्परेचर रीडिंग बाय अ थर्मोमीटर इज 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. ये रीडिंग है थर्मोमीटर के कारण फर्स्ट रीडिंग. सेकेंड है T2, T2 be the new temperature and the temperature readings are 50 degree 50 degree centigrade plus minus 0.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, मतलब कोई टेम्परेचर रीडिंग नोट किया है एक फर्स्ट थर्मोमीटर से तो इतना आया, सेकंड थर्मोमीटर से इतना आया. क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर्स देयर इन, ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर डिफरेंस. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? टेम्परेचर डिफरेंस. सो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालेंगे? पहले 20 डिग्री था, बाद में 50 हो गया, तो यानी टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? θ2 माइनस θ1. तो पहले देखो ये निकालो, सो 50 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितना आ गया? 30 डिग्री. लेकिन जो एरर इन द टेम्परेचर डिफरेंस वो कितना होता है? एरर इन द टेम्परेचर डिफरेंस, तो वो मैं जानता हूँ प्लस माइनस कितना होता है? 0.5 प्लस 0.5, यह आपका आ गया 1.0. ओके, सो बहुत बच्चे यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि यहाँ भी डिफरेंस कर देते हैं. इट इज़ माई पर्सनल experience that when students while doing the errors due to the difference, what they generally used to do, they subtract this one. So remember this thing, जो error होते हैं
चाहे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सभी में मैक्सिमम जो पॉसिबल एरर आता है वो ऐड करके आता है। सो ठीक है, सो हियर यू विल राइट द आंसर लाइक दिस। सो आंसर यू विल राइट लाइक दिस, दैट इज 30 डिग्री, तो ये हो गया डिफरेंस, प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, या तो जो डिफरेंस आएगा या तो 31 होगा या तो 29 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। एक और क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2, एरर्स ड्यू टू द सम। रेजिस्टेंस की वैल्यूज गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 प्लस माइनस 3 ओम, यानी 100 है या 3 ज़्यादा हो सकता है या 3 कम हो सकता है। ठीक है, सेकंड है, सेकंड का रेजिस्टेंस कितना आ गया, R2 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम। अब हमें बताना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। इन द क्लास 10 यू माइट हैव लर्न रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस जुड़ जाता है। तो ये दिस इज द एग्जांपल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ एरर्स एडिशन, एरर्स ड्यू टू द सम, और ये एग्जांपल था एरर्स ड्यू टू द डिफरेंस। तो सीरीज में क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, तो आपको निकालना इजी रहेगा। तो कैसा हो जाएगा, सम, जब मैं इसको सम करूँगा तो क्या हो जाएगा, 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 300 प्लस माइनस, आपको पता है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एरर दैट इज 3 + 4 7। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।